नमस्कार। ये वीडियो भारत का संविधान आर्टिकल 370 को समझने के लिए मैंने बना रहा हूँ। आर्टिकल 370 क्या है, पहले इसको हम समझ लें। चैप्टर 21 में, चैप्टर 21 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 370 दिया गया है। इसको पढ़ते हैं जरा। 370 ब्रैकेट में दिया है 1. Notwithstanding anything in this constitution, the provisions of this Article 238 shall not apply in relation to the state of Jammu and Kashmir. B है, power of Parliament to make laws for said state shall be limited to, आगे है number 1, those matters in Union list and concurrent list which in consultation with government of state are declared by President to correspond to matters specified in instrument of accession governing accession of state to Dominion of India as matters with respect to which Dominion legislature may make laws for that state. फिर पढ़ता हूँ, देखिए। Those matters in union list होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, and concurrent list which in consultation with government of state are declared by President to correspond to matters specified in instrument of accession governing accession of state to Dominion of India as matters with respect to which Dominion legislature may make laws for that state. फिर पढ़ता हूँ, देखिए, क्योंकि समझ आसानी से आता नहीं है। Let me read it again. Those matters in union list and concurrent list, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट होती है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर होती है, पार्लियामेंट को पावर होती है। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट को भी पावर हो सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पावर हो सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट विच इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट टू करस्पॉन्ड टू मैटर्स स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको अंडरलाइन समझिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन governing accession of state to Dominion of India as matters with respect to which Dominion legislature may make laws for state. दूसरा कहता है such other matters in the said list as such other matters in said list का तो ऊपर दी गई list as with concurrence of the government of state the president may by order specify. इसके बाद वो explanation देता है For purposes of this article, government of state means person for time being recognized by President as Maharaja of Jammu and Kashmir, acting on advice of Council of Ministers, for time being in office under Maharaja's proclamation dated 5th day of March 1948. दोबारा सुनिए इसको। For purposes of this article, government of state means person for time being recognized by President as Maharaja of Jammu and Kashmir, acting on advice of Council of Ministers, for time being in office under Maharaja's proclamation dated 5th day March 1948. फिर कहता है सी में provisions of Article 1 and of this article shall apply in relation to that state. D कहता है such of other provisions of this constitution shall apply in relation to that state subject to such exceptions and modifications as President may by order specify, provided that no such order which relates to matter specified in instrument of accession of state referred to in paragraph 1 I of subclause B shall be issued except in consultation with government of that state, provided that no such order which relates to matters specified in instrument of accession of the state referred to in paragraph I1 of subclause B shall be issued except in consultation with the government of the state, provided further that no such order which relates to matters other than those referred to in last proceeding proviso shall be issued except with concurrence of the government of that government. इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में वो दूसरी स्टेट के बारे में बात करता है। तो आप ये देखिए, ये आर्टिकल
आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर क्या दिया गया है। यह टेम्पररी प्रोविजंस हैं इसमें, इसके अंदर साथ में स्पेशल प्रोविजंस से आता है, स्पेशल प्रोविजंस में आता है, विशेष प्रोविजंस है ये वहाँ का। और इसमें कि यूनियन लिस्ट का मैटर हो या कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर हो, उस सरकार के बिना नहीं चल सकता। प्रेसिडेंट अगर चाहेगा भी ऑर्डर दे उसके ऊपर, लेकिन उसको वहाँ की सरकार की सहमति लेनी जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से ये कहा गया है, इसको हटाया नहीं जा सका है। प्रेसिडेंट की पावर इसमें लिमिटेड है, सरकार की पावर लिमिटेड है, स्टेट असेंबली की पावर ज़्यादा है। एक्सप्लेनेशन में साफ कहा गया है, for purposes of this article, government of state means person for the time being recognized by president as Maharaja of Jammu and Kashmir, acting on the advice of council of ministers for the time being in office under the Maharaja's proclamation dated 5th day of March 1948। बताइए इसमें जो अब लोग बातें कर रहे हैं आपके फेसबुक पे या कहीं और सोसाइट्स पे या टेलीविजन वाले, वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, कोई पढ़ता नहीं है इसमें क्या लिखा है। कुछ भी कह रहे हैं जी आर्टिकल हटा देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको निकाल दो। अरे इसमें से क्या निकाल दोगे ये तो बताइए आप। एक्सेशन है, एक्सेशन को आप निकाल देंगे क्या? अगर आप 370 को हटा देते हैं, मान लीजिए 370 हट जाती है, तो आप क्या चाहते हैं? इसके अंदर एक्सेशन हुई हुई है। इसमें ये कहाँ लिखा है कि जो हम बातें बोलते हैं सोशल साइट्स पे, टेलीविजन पे, इस पे उस पे, वो सब इसमें नहीं दिया है। सिंपल दिया है कि कश्मीर, स्टेट ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो उस टाइम एक कंट्री था, एक नेशन था, राष्ट्र था, जिस टाइम उनको स्वतंत्रता मिली थी, वो किसी वजह से काफ़ी महीने बाद आज़ादी मिलने के मजबूरी में या किसी भी वजह से कह दीजिए उसके ऊपर लड़ाई कर दी गई थी काबलियों ने पाकिस्तान के। वो डर गया था, हीरा शाह और राजा हरी सिंह डर गया था, वो चाहता कुछ और था, चाहता इंडिपेंडेंट रहना था, लेकिन ब्रिटिश ने मना कर दिया था उसको कि हम आपको कंट्री नहीं मानेंगे। उसने पाकिस्तान की तरफ जाने की कोशिश की थी, लिख के भी पाकिस्तान को दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ नहीं गया, पाकिस्तान ने उसको अटैक कर दिया। हमारे यहाँ भी नहीं आना चाहता था, वो चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, लेकिन जब लड़ाई हो गई उसको प्रॉब्लम आ गई, वो संभाल नहीं पाया उस काबिलों की लड़ाई को। पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं किया था, काबिलों ने किया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन मना किया था कि हम तेरे को सपोर्ट नहीं देंगे, सपोर्ट मांगी थी। उसने कहा तुम दूसरी कंट्री में सपोर्ट नहीं देंगे, हमारी कंट्री को हम सपोर्ट देंगे, हम फौज नहीं भेज सकते। इसीलिए उसने फटाफट वहाँ जब देखा कि ये जब बात बनेगी नहीं, मेरे लोग पिट रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मैं अपनी पब्लिक को देख नहीं सकता ऐसा, उसने फटाफट लिख के भेजा एक्सेशन भारत को, ताकि फौजें वहाँ चली जाएं। और रात रात में फौजें वहाँ भेजी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑर्डर दिया। उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन हमारे गवर्नर जनरल थे, एक तरह के वाइस चांसलर थे, सॉरी वाइस रॉय थे भारत के। 3 साल तक रहे थे। ना तो प्रधानमंत्री की पावर थी ना किसी और की पावर थी, जब तक वो कहते थे वैसा ही होता था। तो उन्होंने कह दिया था लॉर्ड माउंटबेटन, तो ठीक है भाई, हम इसकी जिस तरह बाकी स्टेट्स में हुआ है रेफरेंडम, इनका भी कराएंगे, लेकिन अभी हम फौज भेज रहे हैं क्योंकि अब आप हमारी कंट्री से सपोर्ट मांग रहे हो और आप एक दूसरी कंट्री नहीं रहे हो, आप एक्सेशन में आ गए हो हमारे पास, हमारे से मिल गए हो, इसलिए एक्सेशन हो गया आपका, हम फौज भेज रहे हैं। उन्होंने फौज भेज दिया, जबकि हरि सिंह ने अपने सेक्रेटरी को कह दिया था कि अगर कल सुबह तक फौजें ना आए भारत की, रात को मुझे सोते सोते उठाना नहीं, मेरे को मार देना, गोली मार देना मेरे कान पे। ये उनका कहा है कि अगर कल तक भारतीय फौज ना आए, मुझे मार देना, उससे पूछने की जरूरत नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल वो है भाई। ये सब बातें जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं, जो बेचारे भक्त कर रहे हैं, टेलीविजन वाले अनपढ़ गंवार धोबी चैनल कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं, कोई पढ़ता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस हटा दो हटा दो हटा दो। अरे हटा दो तो 370 में एक्सेशन में हट जाएगा। मर्जर नहीं हुआ है देश में अभी उसका। हम कहते हैं ठीक है, हम कह रहे हैं, लेकिन लीगली भी चीज होती है, कानून में कहाँ लिखा है एक्सेशन क्यों कहते हैं? मेरा इस आर्टिकल को हटाएगी नहीं, अब तक वो भी हट जाएगा। बाकी स्टेट्स मर्ज हुई थी, एक्सेशन एंड मर्जर, उन्होंने एक्सेशन एंड मर्जर कहा था कि लीगली मर्जर नहीं है, और इसी कारण की वजह से उनका संविधान हमारे संविधान में अलग है। उसमें आर्टिकल 1 कॉमन है, जिसमें नाम सेम है, फौजें सेम है, बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स सेम है, लेकिन जब तक वहाँ की असेंबली कोई भी कानून हमारे यहाँ बनता है उसको नहीं मानेगी, अप्रूव नहीं देगी, तो वो पे लागू नहीं होता।
आप कोई भी एक्ट पढ़ लीजिए उठा के, साफ लिखा होता है ये पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन जब वो कश्मीरी राज्य पे लागू नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो चाहेंगे नहीं वो लागू नहीं हो सकता, ये कानून है, नियम है हमारे देश का। तो इसको आप वहाँ की असेंबली भी नहीं हटा सकती है, क्योंकि उनके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उस टाइम, हमारी भी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी भारत के संविधान बनाने के लिए, लेकिन उनकी भी थी। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जब तक अप्रूवल नहीं होगी, वो भी अप्रूवल नहीं अप्रूव होगी। जब तक वहाँ की अप्रूवल नहीं होगी तो हमारा राष्ट्रपति भी अप्रूवल नहीं दे सकता। उसमें कंडीशन है कि भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी तभी होगी जब उनकी मंजूरी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। बड़े बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ हमारे से बोलते थे इंटेलिजेंट, तो समझ तो आता नहीं है, पढ़ते हैं नहीं। हमारी एक आदत है हमारे देश की, हम कागज नहीं पढ़ते, हम किताब नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते, बोलते हैं इसे सुना। पंडित जो पहले सुनाते थे ना, फिर सुन लो जो मैंने कह दिया वही मंत्र ठीक है, वही हाल हमारा है। अनपढ़ पढ़े लिखे सब पंडित वही है। हम पंडित ने जो जो इन लोगों ने बोल दिया हमने मान लिया, खोल के किताब नहीं पढ़ेंगे, ये हमारी कमी। एनीवे, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को। मैं सिर्फ आई विल जस्ट लाइक टू से दैट प्लीज रीड आर्टिकल 370. इट हैज नथिंग टू से व्हाट पीपल आर barking. Yes, they are all barking. Illiterate and literate all. TV channels, Bhaats, and all politicians, they have not gone through this article except few lawyers and experts. They don't understand the implication of this article, and they don't want to understand because they have only in mind remove this article. This is complete nonsense. They don't understand. They have not analyzed this. They cannot analyze it. They cannot understand this. If they cannot understand, they only bark, and barking has a solution. But experts know it. Top people know it. That's why they don't understand. This is a politics only. They play politics with such article. Remove this will have. Whole world knows this article. Whole world knows our constitution. So either force yourself when assembly comes to merge in our country. May say, oh, Abhinang. Yes, it is Abhinang. Who's saying not Abhinang? It is your Ang. But your Ang is amputated one. You assemble your Ang to your body. It is not born Ang. Born नहीं हुआ बाप के साथ, पैदा नहीं हुआ वो अंग, वो लगाया ही अंग है, आर्टिफिशियल अंग है। पहले ठीक करो, रिपेयर करो उसको। Anyway, my intention was just to apprise to people about what facts are. This is simple, 2 paragraphs are there, but these paragraphs have got detailed meaning, elaborated meaning. You have to understand that. Particularly youth of this country must understand the facts. If they don't understand the fact, they will keep in darkness. And if you want to stay in darkness, stay in darkness. I don't mind that. But facts remain there all times. And I hope you got it. और ये गलतफहमी निकाल दो, पॉलिटिक्स क्या कहती है, राजनीति में क्या कहते हैं, सब बेकार की बातें हैं। Accession is there, and Supreme Court has already educated that this is no more temporary, this is a permanent status. So that temporary status is also gone because this is a special law for a state, not for a profession, it's for a state, which was a country. That's what I wanted to say about this. I hope you got it, and thank you very much for this. Bye bye. Jai Bharat.